میں معذور ضرور ہوں لیکن اپنی فطری خواہش پوری کرنے کی طاقت ہے میرے اندر۔ شاویز کی بات پر عمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اس رات وہ اس کی محبت میں بھیگتی رہی۔ شاویز نے پوری چاہت سے اسے اپنا لیا۔ جب 2 مہینے بعد وہ پریگننٹ ہوئی تو خبر سن کر فلک کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم عمل کو طلاق دے دو شاویز، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاویز نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ہر رات شدت سے محسوس کیا میں نے ایسے، تبھی تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھے معذور سمجھ کر ٹھکرایا تھا تم نے۔ فلک سر سے پاؤں تک سلگ گئی۔ پھر ایک منصوبہ بنایا تھا اس نے ایک رات شاویز کے بستر پر۔ کچھ سنا تم نے؟ عمل ماں بننے والی ہے، شاویز کا بچہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے اس دنیا میں۔ فیروزہ بیگم کی بات پر فلک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ کیا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ ان کے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ شدید حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ہمیشہ شاویز اس کی محبت کے غم میں مبتلا، کبھی عمل اس کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ تبھی فیروزہ بیگم ہاتھ ملنے لگی، تبھی سمجھاتی تھی تمہیں ایک نہ ایک دن شاویز اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، پھر سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، لیکن تمہیں عقل نہ آئی، تمہارا وقتی غصہ سب کچھ لے ڈوبا۔ دنیا شاویز پر تو ختم نہیں ہوتی امی، مجھے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ فلک نے اپنے دل میں آیا غصہ چھپا لیا تھا، حالانکہ دل اندر ہی اندر جل کر خاک ہو رہا تھا۔ آج عمل کا بیبی شاور رکھا گیا تھا، یہ شاویز کی خواہش پر ہوا تھا۔ اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بھرا بڑا جسم لیے وہ باہر جانے میں ہچکچا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سوٹ پہن لیا جو بہت بڑا ہوا تھا۔ شاویز کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ شاویز بھی اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت شدت سے منتظر تھا۔ عمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا جیسے وہ باہر جانے لگی۔ شاویز نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ، کہیں کسی کی بری نظر ہماری خوشیوں کو خاک میں نہ ملا دے، اس لیے اپنی نظر اتارتی جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے 1000 روپے اس کے سر سے وار دیے تھے۔ عمل اس کی محبت پر سرشار ہو گئی۔ سچ میں خوشیوں نے دیر سے صحیح لیکن ان کی دل کی دہلیز پر دستک دے دی تھی۔ شاویز کو جب سے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے، جیسے اس نے دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ وہ اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ عمل دودھ پینے سے بہت چڑھتی تھی لیکن وہ بڑی محبت سے اسے کہتا، بچے کے ساتھ ساتھ تمہاری صحت بھی ضروری ہے۔ عمل بالکل دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ شرمائی لجائی ماں بننے کا نور اس کے چہرے پر مامتا بن کر پھوٹ رہا تھا۔ فلک اور فیروزہ بیگم بھی آج اس تقریب میں آئی تھی۔ عمل کو یوں شاویز کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو نوچ کر پھینک دے۔ یوں شاویز سے بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر عمل کی نظر فلک پر پڑی تو وہ اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ وہ اسے حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عجیب سی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کہاں غائب ہو گئی؟ شاویز اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اب اسے ویل چیئر کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، ایک ٹانگ میں ابھی بھی لڑکراہٹ تھی لیکن وہ اتنی واضح نہیں ہوئی تھی۔ بہترین علاج اور توجہ سے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا تھا اور پہلے کی طرح وہی سب کر رہا تھا جو اس کی روٹین تھی، لیکن ایک حادثے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ آج اس نے فلک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، فلک خود ہی اس کی طرف آئی تھی اسے مبارکباد دینے کے لیے، لیکن شاویز نے اسے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ کافی دیر تک تقریب چلتی رہی، پھر وہ تھک ہار کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ کپڑے بھی تبدیل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاویز بھی کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ تھک گئی ہوں؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی ایسی حالت میں زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا جاتا ہے اور نہ ہی بیٹھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا درد ہو رہا ہے میری ٹانگوں میں، کہو تو بیگم صاحبہ کے پاؤں میں مالش کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے پاؤں کی مالش کریں، اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کپڑے چینج کر کے آرام سے لیٹ جاؤ۔ شاویز نے بھی کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ پھر عمل جیسے سونے کے لیے لیٹی، پاؤں میں ہونے والے درد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی لیکن اپنے پاؤں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا کریں آپ؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے ایک دم اپنے پاؤں سمیٹے تھے۔ شاویز اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔
کوئی بات نہیں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. تمہاری تکلیف میری اور میری تکلیف تمہاری. یہی سکھایا نا تم نے مجھے. جب میں شدید ڈپریشن اور اذیت میں تھا تم پوری پوری رات میرے ساتھ جاگتی تھی. میری ضرورتوں کی خاطر. تو کیا میں اب اتنا سا بھی نہیں کر سکتا؟ شاویز کے کہنے پر امل کا دل دھڑکنے لگا. وہ خود شاویز کے عشق میں خود کو شدید مبتلا کر بیٹھی تھی. اس کی خاموشی پر شاویز نرمی سے اس کے پاؤں کا مساج کرنے لگا. ایسے سے اپنا درد جاتا ہوا محسوس ہوا. پھر امل نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے شاویز، کہیں ہماری خوشیوں کو کسی کی حسد کی نظر نہ لگ جائے. ہم دونوں کو نصیب ہوگا نا اپنے بچے کی خوشی دیکھنا. وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی. آج جس طرح فلک اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی وہ خود کو خوف میں مبتلا ہونے سے نہ روک سکی. شاویز نے ایک دم ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. وہ مسکرا دیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. خود سے وعدہ کیا ہے میں نے، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں لاؤں گا. اس لیے اس حالت میں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. شاویز کی بات پر اس کا چہرہ کھل اٹھا. پھر وہ دونوں اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کرنے لگے. ابھی تک ڈاکٹر نے جینڈر کا بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا یا پھر پیاری سی بیٹی. یہ کیا حرکت ہے فلک؟ اس نے بیبی شاور سے آتے ہی وہ کانچ کا گلدستہ زمین پر دے مارا. فیروزہ بیگم اس کا غصہ دیکھ کر خوف کھا رہی تھی. وہ میرے شاہزیب کے ساتھ چپکی کھڑی تھی. اس کے ساتھ جان بوجھ کر وہ دونوں مجھے جلانے کے لیے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. چلے تمہارے دشمن میری بیٹی نے کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ کمی تو شاویز کی ذات میں ہے. تمہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. فیروزہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. میں کچھ نہیں جانتی ماما، آپ بس جلد سے جلد میری شادی کر دیں. میں شاویز سے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. فیروزہ بیگم مسکرا دی. کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ میں کل ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری جلد شادی ہو جائے. اس کے دل میں ایک سکون سا آیا، ورنہ اس سے پہلے تو حسد اور جلن نے اسے اتنی بری طرح گھیرا کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہی تھی. بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شاویز کی محبت بھری آنکھیں جو کبھی اس کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ان نظروں سے اب امل کو دیکھتا تھا. دونوں کتنے زندگی سے بھرپور اور مکمل لگ رہے تھے، اور یہی بات فلک سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے امل کی آنکھوں میں خوف تھا. وہ بار بار شاویز سے کہتی نہ جانے میں اپنے بچے کو دیکھ پاؤں گی یا نہیں. سنا کہ ڈیلیوری میں اکثر عورتیں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. نہ جانے وہ ایسی باتیں کہاں سے سنتی تھی. شاویز پریشان ہو جاتا. مت کیا کرو امل ایسی باتیں. تم جانتی ہو نا کہ پہلے میں کتنے بڑے فیز سے گزرا ہوں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے زندگی کو اپنے اوپر ختم کر لیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایسی حالت میں مر جاؤں گا، لیکن پھر امی بابا اور تم نے مجھے جس طرح ایک ایک منٹ سہارا دیا، میری ضرورتوں کا خیال رکھا، زندگی کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا. یہ باتیں سوچتا ہوں تو مجھے تم سب سے پہلے بھی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. شاید تم تینوں کے بغیر میری زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں. اور اس ہونے والے بچے نے تو مجھے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا ہے کہ نہ تمہیں کچھ ہو اور نہ ہی مجھے. ہم ہمیشہ اپنے بچے کے لیے جیتے ہیں تاکہ آنے والا وہ معصوم ہماری محبتوں سے محروم نہ رہ سکے. شاویز کی بات پر امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے معاف کر دیں شاویز، سچ میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. مجھے جینا ہے اپنے بچے کے لیے. اب میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کروں گی. وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھے لیٹی تھی. شاویز بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی تھی. شاویز نے جھک کر اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی. محض 2 ماہ کے اندر اندر فلک کی بات بھی پکی ہو گئی اور شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی تھی. یہ سب بہت جلد بازی میں ہوا. فیروزہ بیگم اور ان کے شوہر نے نمیر کو صرف ایک بار نہیں دیکھا تھا. باڈی بلڈر جیسا وجود، لمبا چوڑا اور خوبرو، کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہ تھی. وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا. فلک اور اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی جہاں پر دونوں کی دوستی ہوئی. فلک نے نمیر کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا. پھر اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئے تو فلک کے کہنے پر فیروزہ بیگم اور ان کے شوہر نے حامی بھر لی. حالانکہ دل سے انہیں یہ لڑکا پسند نہیں آیا تھا جس کے اندر بلا کا ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن یہ لڑکا ان کی بیٹی کی پسند تھا، اس لیے وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. فلک جو چاہتی تھی وہی ہو کر رہتا تھا اور اب اسے نمیر میں اپنے زندگی کا ہمسفر نظر آیا. 2 ماہ میں جھپٹ شادی ہو گئی. ساری تیاریاں ہو گئی. آج فلک شادی کا کارڈ لے کر شاویز اور امل کے پاس آئی تھی. اس کی ڈیلیوری میں ابھی بس 1 ہفتہ ہی باقی تھا.
वो इसे नागवार नजरों से देख रही थी। अजीब मटका सा पेट लिए, खुला लिबास पहने वो इसके सामने खड़ी थी। ये क्या गवार जैसा हुलिया बना रखा है तुमने, बिल्कुल किसी गांव की औरत की तरह लग रही हो। फलक ने इसे देखकर हकारत से कहा। अमल खामोश रही, न जाने क्यों उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। अभी भी वो इसके सामने ना बोल पाती थी। तभी शावीज जीने से उतरता हुआ दिखाई दिया। तो अभी कपड़े बदलकर लाउंज में आया था, जहां पर इसने फलक को बैठा देखकर नजरअंदाज किया था। हाय शावीज, हाउ आर यू? उम्मीद है कि तुम बिल्कुल खैरियत से होगे और अमल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे होगे। वैसे मेरी भी शादी है और आज मैं तुम दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करने आई हूँ। फलक जानती थी कि शावेद इसे नजरअंदाज करके चला जाएगा, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़कर इसके सामने आई थी। वो इसकी आंखों में अफसोस देखना चाहती थी, फलक को होने का अफसोस। लेकिन शावेज ने बेनियाजी से इसकी तरफ देखा और फिर बेतासुर लहजे में कहने लगा, मुझे अफसोस है फलक कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हारी शादी में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अनकरीब इसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर हम दोनों अपने बच्चे में मसरूफ हो जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम किसी की शादी में जा सके। शाहवेज की कड़वी बात सुनकर तो गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। ठीक है, तुम दोनों नहीं आ सकती, लेकिन फूफो से कह देना कि वो जरूर आए शादी में, फिर मुलाकात होगी तुमसे। मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊंगी तुमसे मिलवाने। बॉडी बिल्डर है, इतना हैंडसम, लाखों लड़के इस पर मरते हैं, किसी चीज की कमी नहीं इसके अंदर। इसने शावेज को जैसे एक तंज किया था, लेकिन वो खामोश रहा। अमल को फलक पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर आए मेहमान की तौहीन करना शायद इज्जतदार लोग गवारा नहीं करते। वो दोनों खामोश थे। फिर वो जिस तरह आंधी तूफान की तरह आई थी, ऐसे ही वापस चली गई। इसकी शादी का कार्ड इस पर पड़ा था। शावेज ने जैसे उठाकर फेंकना चाहा, अमल ने इसे रोक दिया। ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा, वो हम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर जाने वाली है, अपनी जिंदगी की खुशियों को तलाश करने। हमें सिर्फ अपने होने वाले बच्चे और अपने बारे में सोचना है। ये सुनकर शावेज का गुस्सा ठंडा हुआ था। फिर वो इसे कहने लगा, चाय बनवा लो, लॉन में बैठकर पीते हैं। इसकी आवाज में नरमी और मोहब्बत महसूस करके अमल मुस्कुरा दी थी। इधर फलक का निकाह हो रहा था तो उधर अमल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो बुरी तरह तकलीफ से तड़प रही थी। जकिया बेगम, शावेज के बाबा, खुद शावेज भी इसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी। मुबारक हो, बेटी की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ये सुनते ही शावेज सजदे में गिर गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि रब इस पर यूं भी मेहरबान हो सकता है। फिर जब गुलाबी कपड़े में लिपटा हुआ गोल मटोल सा बच्चा डॉक्टर ने शावेज के हाथों में लाकर थमाया तो न जाने क्यों इसकी आंखें खुशी से गीली हो गई थीं। जकिया बेगम भी बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। फिर वो डॉक्टर से कहने लगा, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? इनकी तबीयत कैसी है? जी जी, क्यों नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर की तसल्ली पर वो फौरन ही बच्चे को लेकर अमल के पास आया था, जो बहुत जर्द चेहरा लिए बिस्तर पर लेटी थी। बच्चे को जन्म देना आसान बात नहीं थी। शावेज ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली। बहुत शुक्रिया, ये मेरी जान, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। शावेज के कहने पर अमल अपनी सारी तकलीफ भूल गई। शायद वो यही बात सुनना चाहती थी। इसने अपने बच्चे को देखा, फिर इसने जब मेहरबानी पर खुदा का शुक्र अदा किया। हर तरफ खुशियों की चहकार थी, कहीं इनकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, बस यही सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। दुल्हन बनी फलक बड़े गरूर से नुमैर सदीकी के पहलू में बैठी थी। सब इसे देखकर रश कर रहे थे, क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। जहां फलक के चेहरे पर एक गरूर था, तो नुमैर भी इससे बैठा था जैसे इसके मुकाबले का यहाँ कोई ना हो। जकिया बेगम के खानदान से किसी ने भी इस शादी में शिरकत नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी खुशियों में मसरूफ थे। फिर थोड़ी देर बाद फलक की रुखसती हो गई। रुखसती के वक्त उसने एक आंसू नहीं बहाया था। वो तो नुमैर के संग आसमान की बुलंदियों पर उड़ने को तैयार थी। फिरोजा बेगम रूठती नजरों से अपनी बेटी को देख रही थी, क्योंकि नुमैर इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। अपने दामाद के तौर पर न जाने क्यों वो शावेज और नुमैर का मवाजना करने लगी। सच में दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। बस वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआएं कर सकती थी। सुहाग रात में फलक को नुमैर का असल चेहरा नजर आ गया, जब वो शदीद ड्रिंक करके इसके पास उजला उरूसी में आया था। तुम ड्रिंक करते हो नुमैर? इसके मुंह से बदबू के भुभुके उठ रहे थे।
बामुश्किल फलक ने अपने मुंह पर हाथ रखा। नुमैर ने इसे खींच लिया। ओह माय प्रिंसेस, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? अच्छा, तुम्हारे सामने कभी मैंने ड्रिंक नहीं की, लेकिन हमारी सोसाइटी के सब लोग इस चीज के आदी हैं। मेरे बाबा भी ड्रिंक करते हैं, तो फिर इनका बेटा क्यों पीछे रहे? सच में अगर तुम मेरे साथ ये ड्रिंक करोगी तो हम दोनों की सुहाग रात का मजा दुबाला हो जाएगा। इस घटिया बात पर फलक बिल्कुल हैरान रह गई। इसके सामने आज इंकशाफ हुआ था कि नुमैर कसरत से ड्रिंक करता है। वो रो देने को थी, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। अचानक ही नुमैर ने इसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। इसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। कहाँ जा रही हो? पहले जो मेरा इतना खर्चा करवाया है इसका हक तो दे दो, मुझे कुछ तो वसूल करने दो यार। नुमैर ने इससे बिस्तर पर धक्का दे दिया। ये कैसा सुलूक कर रहे हो तुम मुझसे? बीवी हो तुम्हारी, कोई रखेल तो नहीं? फलक ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। नुमैर ने इसका मुंह दबोच लिया। यू बिच, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने बोलने की और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। आइंदा अपनी जुबान बंद रखना। इसने लम्हे भर में इसे मसल डाला था। वो जो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी, अचानक ही टूटी बिखरी सी बिस्तर पर पड़ी थी। अपनी जात को समेटने की कोशिश करती हुई बामुश्किल उठकर वॉशरूम में गई थी। इसे नुमैर से बेतहाशा घिन आ रही थी। काफी देर तक आंसू बहाती रही, फिर अचानक ही अपने आप को आईने में देखा तो डर गई। पूरा चेहरा काजल बिखरने की वजह से काला हो रहा था। ऊपर से वो बड़ी ही दहशतनाक लग रही थी। जल्दी जल्दी रगड़ कर अपना मुंह धोया, फिर अपने आप को समझाते हुए कहने लगी, क्यों इतना फजूल में परेशान हो रही हो फलक? भूल गई क्या नुमैर सदीकी एक सियासतदान और बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता है, और फिर इसकी खूबसूरती हजारों लड़कियों को छोड़कर इसने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और ड्रिंक वाली बात बहुत छोटी है, ये तो बड़े बड़े घरानों में मामूल की बात है। वो अपने आप को समझा रही थी, लेकिन अचानक ही दिल के किसी कोने से आवाज आई थी, लेकिन शारवेज ने कभी इसे छुआ भी नहीं था। हालांकि इन दोनों की मंगनी को 3 साल हो गए थे, फिर भी शारवेज ने कभी इसकी इजाजत के बगैर इसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। भीड़ में जाते, कहीं आते जाते वो इसे ऐसे लोगों से बचा बचा कर रखता और इसका साया बना रहता कि कोई इसे टच भी नहीं कर पाता था। वो साकित सी खड़ी शारवेज के बारे में सोच रही थी, तभी अपने आप को संभाल कर सोचने लगी, नहीं, ये मैं क्या मवाजना कर रही हूँ? कहाँ शारवेज और कहाँ नुमैर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब तो वैसे भी वो कहीं साथ ले जाने के लायक नहीं रहा। कितना फर्क आ गया इसकी चाल में। शर्म भी आती मुझे इसके साथ कहीं जाते हुए। वो अपने आप को बहला रही थी। काफी देर बाद वॉशरूम से निकल कर आई तो नुमैर को देखकर एक बार फिर गुस्सा आ गया, जो बिस्तर पर आड़ा तिरछा ऐसे ही लेटा था, होशो हवास से बेगाना। फिर फलक सोफे पर सोकर अपनी थकन उतारने लगी। तुम ही बता दो अमल कि हमारे बेटे का क्या नाम होना चाहिए? शारवेज इससे पूछ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं क्या कहूँ, नाम तो इसका दादा या दादी को रखना चाहिए। आप बता दें अम्मी कि हम आपके पोते का क्या नाम रखें? जकिया बेगम मुस्कुरा दी। मेरे बेटे का नाम शारवेज है तो मैं अपने पोते का नाम शाहजैन रखूंगी। जकिया बेगम की बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। कितना खूबसूरत नाम है शाहजैन, सच में अम्मी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, अमल मुस्कुराते हुए कहने लगी, जबकि बेगम भी खुश हो गई थी। फिर शाहजैन जैसे इनकी जिंदगी में आया था रंग बिखेरने के लिए। हर तरफ इसके खिलौने बिखरे होते। एक बच्चे को पैदा करना जितना मुश्किल है, इससे ज्यादा मुश्किल इसे पालना है, लेकिन अमल दिन रात इसका ख्याल रखती। अब वो ठीक से शारवेज को वक्त भी न दे पा रही थी। शाहजैन 3 महीने का हो गया था, लेकिन शारवेज रात को जब इसका इंतजार कर रहा होता तो वो मजबूर हो जाती, क्योंकि रात रात शाहजैन जागता रहता। यार मैं तो तरस गया हूं तुम्हारी कुर्बत के लिए, तुम तो मुझे इतना सा भी वक्त नहीं देती हो। शारवेज इसे गिला करता। क्या करूं मैं, आप खुद देखें कितना तंग करता है, ये पूरा दिन जगाता है और आधी आधी रात को भी जागता रहता है। समझ नहीं आती कि इसकी कैसी रूटीन है। वो रूहान सी होकर शारवेज से कहती। वो एक गहरी सांस लेकर रह जाता। फिर शाहजैन सो जाता तो उसकी नजर शारवेज पर पड़ती। दोनों बाप बेटे गहरी नींद में होते और वो अकेली जाग रही होती। इससे दुख भी होता, वो ठीक से अपने शौहर को वक्त नहीं दे पा रही थी, लेकिन इससे उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस दिन शारवेज अपने बेटे और अमल को लेकर शॉपिंग मॉल आ गया था। वो चाहता था कि वो इन दोनों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे।
अमल अपने बेटे के लिए कपड़े पसंद कर रही थी। इससे कुछ फासले पर ही शाहजैन अपने बाबा के साथ मौजूद था। तभी कपड़े देखते देखते इसकी नजर चंद कदम के फासले पर खड़ी फलक पर पड़ी। इसके साथ एक लंबा चौड़ा वजूद लिए नौजवान था जो गालिबन इसका शौहर था। आज शादी के बाद पहली बार अमल ने फलक को देखा था। इतनी देर में फलक भी इसे देख चुकी थी। तभी लहराती हुई इन दोनों के पास आई थी। इसने नुमैर का हाथ थाम रखा था। ओहो, दोनों मेरी शादी में तो नहीं आए और मेरे शौहर से मुलाकात भी नहीं की। शाहवेज, इनसे मिलो, ये मेरे शौहर नुमैर सिद्दीकी। वो दोनों बराबर खड़े थे। दोनों में से बेहतरीन शख्सियत शाहवेज की लग रही थी, जो पूरे एतमाद के साथ नुमैर से मिल रहा था। फलक अपने बाल झटकते हुए कहने लगी, तुम जानती हो अमल, नुमैर सिद्दीकी के वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यानी कि मेरे ससुर इतने बड़े खानदान अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता किया है। मैं तो टाइम भी नहीं निकाल पाती अब किसी से मिलने के लिए। देखो, तुम्हारे बेटे की मुबारकबाद नहीं दे सकी। वो इस गोलमटोल से बच्चे को देख रही थी जो शाहवेज की गोद में था। अमल मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं फलक, फिर कभी सही जरूर मिलने आना तुमसे मुलाकात करने के लिए अपने शौहर को लेकर। अरे नुमैर के पास कहाँ वक्त है किसी के घर जाने का, ये तो खुद बहुत बिजी रहते हैं। फलक जानबूझकर शाहवेज के ऊपर रखकर ये बात कर रही थी। तभी नुमैर झुलाते हुए कहने लगा, जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे क्लब भी जाना है। इसने इतनी बदतमीजी से कहा कि फलक इन दोनों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। इसने शाहवेज को तंजिया मुस्कुराते हुए देखा तो इसे और आग लग गई। घर आते हुए इस पर चीखने लगी, तमीज नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। क्या सोच रहा होगा मेरा वो कजन, इसका शौहर कितनी बदतमीजी से बात करता है। इससे कुछ तो सोच कर लिया करो नुमैर, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम। नुमैर का गुस्सा ऐसा ही था। इसने एकदम फलक की गर्दन दबोच ली थी, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। छोड़ो मुझे जंगली दरिंदे, ये क्या कर रहे हो, जान से मारोगे क्या मुझे। उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ इससे बोला नहीं जा रहा था। तभी नुमैर इससे इतने जोर से धक्का दिया कि इसका सर दीवार में जा लगा, जिससे अच्छा खासा निशान पड़ गया। माथे पर शोर शराबा सुनकर नुमैर की वालदा सोफिया बेगम दौड़ती हुई आई। ये क्या हंगामा किया हुआ तुम दोनों ने। फिर नुमैर को इसे मारते देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ इंसान, पहले भी तुम्हारी बीवी ने इस वजह से तुमसे तलाक ली थी और अब चाहते हो कि ये भी तुमसे तलाक ले ले। जल्दबाजी में इन्होंने एक पुरानी बात का तस्करा छेड़ दिया था और फलक अपने गाल पर हाथ रख के अपने जख्मों को फरामोश किए सोफिया बेगम की बात पर बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। फलक की यह हालत देखकर वो गड़बड़ा गई। तभी नुमैर गुस्से से कहने लगा, अगर ये भी ऐसे मेरे सामने जुबान चलाएगी, चीखेगी, तो मैं इससे भी 9-2-11 करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। समझा रहे आप इसे अपनी जुबान में, मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। वो पांव से इसे ठोकर मारता कमरे से बाहर चला गया, जबकि फलक एकदम सोफिया बेगम के सामने आई थी। क्या कह रही थी आप? या नुमैर पहले भी शादी कर चुका है? कह दीजिए कि ये सब झूठ है। वो मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकता और ना ही आप लोग। सोफिया बेगम गड़बड़ाई। देखो बेटा, नुमैर ने हमें कहा था कि ये सच तुम्हें ना बताया जाए, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसकी पहली बीवी उर्वा थी, जिसे हम पसंद से नुमैर की शादी करके लाए थे, लेकिन हमारे लाड प्यार ने इसे बिगा रखा है। वो किसी का लहजा बदतमीजी वाला तो खास तौर पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उर्वा भी ऐसे ही इसके सामने जुबान चलाती थी। एक दिन गुस्से में आकर नुमैर ने इसे तलाक दे दी। अगर तुम ये सब करोगी तो वो किसी दिन तुम्हें भी तलाक देकर हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा, इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। सोफिया बेगम इसे समझा रही थी। वो मुझे तलाक क्या देगा आंटी, मैं खुद इसे लात मारती हूँ। इसने मुझे धोखा दिया, पहले से शादीशुदा होकर इसने मुझसे शादी की। क्या कमी थी मेरे अंदर? वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मैं जा रही हूँ इस घर से और अपने बेटे को कहिएगा कि तलाकनामा भिजवा दे, मैं नहीं रहूंगी इस जंगली जानवर के साथ। ये कहते इसने अपना बैग पैक किया। सोफिया बेगम ने सर थाम लिया। न इनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि फलक को रोकती, ना ही अपने बेटे को सुधार सकती थी, क्योंकि वो जो एक बार बिगड़ जाता है, इसका सुधरना बहुत मुश्किल होता है। शाहवेज अपनी आखिरी सर्जरी के बाद अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अब बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस होता है, जो उसके साथ कोई हादसा हुआ था, जिसकी वजह से एक टांग में हल्की सी ऊंच नीच रहती, वरना इससे ज्यादा नहीं, और चलते हुए तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। अमल के साथ इसकी जिंदगी किसी जन्नत की तरह गुजर रही थी, और बेटे के आने के बाद तो वो दोनों बहुत मसरूफ हो गए थे। आज उसने शाहजैन को जल्दी सुला दिया था। वो कुछ वक्त अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती थी। शाहवेज ने भी इसकी तैयारी देख ली थी। तभी लैपटॉप ऑफ कर दिया।
क्या बात है, आज बेगम साहिबा बहुत मीठी मीठी नजरों से हमें देख रही हैं। वो इसे छेड़ने लगा तो अमल को शर्मो हया ने घेर लिया। खुद ही कहते हैं कि मैं टाइम नहीं देती और अब मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं। इसने मसनूई खफगी का इजहार किया। ओहो, मजाक कर रहा हूँ जान, बस तुम्हारी एक नजर देखने की देर होती है और मेरा दिल तुम्हारे कदमों में लूटने लगता है। शाहवेज ने शोखी से कहा तो अमल बेख्तियार हंसने लगी। तभी इसने अमल के दोनों हाथ थाम लिए, इससे पहले कि वो जज्बात में आकर कोई गुस्ताखी कर बैठता। अचानक इसका मोबाइल बजने लगा। दूसरी तरफ रोती हुई मुमानी फिरोजा थी। शाहवेज, खुदा के लिए जल्दी घर आओ, तुम्हारे मामू भी घर पर नहीं है। फलक आई है, रोती पीटती अपने ससुराल से। नुमैर ने इसे बहुत बुरे तरीके से मारा है, मेरी बच्ची को बहुत बड़ा जुल्म हुआ इस पर। मुमानी की बात सुनकर वो हैरान रह गया। स्पीकर से जोर जोर से रोती हुई आवाज अमल की कानों में भी गूंजी। वो परेशान हो गई कि न जाने क्या मामला है। तभी शाहवेज ने घड़ी की तरफ देखा, फिर मुमानी से कहने लगा, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, आप परेशान मत हो। ये कहकर इसने कॉल काट दी। फिर वो अमल से कहने लगा, मैं आता हूँ, शायद फलक के साथ नुमैर ने कोई मिसबिहेव किया है, मुझे जाना होगा। अमल दिल महसूस कर रह गई। अभी वो दोनों खूबसूरत लम्हे में गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन अचानक सब कुछ लम्हे भर में बदल गया। अमल का नाजुक दिल कांपने लगा। क्या इसकी जिंदगी में अभी कुछ होने वाला है? न जाने क्यों इसे अपने पास एक खतरा महसूस हो रहा था। फलक की खराब हालत देखकर शाहवेज हकीकतन परेशान हो गया था। इसके माथे पर चोट का निशान था तो चेहरे पर थप्पड़ों के निशान, ऊपर से बाल बिखरे हुए थे, मलचके कपड़े और रोती हुई सुर्ख आंखें इसके दिल का हाल बता रही थी। वो नजरें चुरा कर रह गया। कभी ये लड़की इसकी शदीद मोहब्बत और तलब रही थी, जिसने लम्हे भर में इसे साफ कर दिया, ये कहकर ठुकरा दिया कि वो एक माजूर शख्स है। तब इसके दिल पर क्या गुजरी थी ये वही जानता था, लेकिन इसने इस बात को नजरअंदाज किया और मुमानी फिरोजा से कहने लगा, क्या हुआ इसके साथ? क्योंकि नुमैर ने तुम्हारे साथ ये सब किया फलक? वो एकदम ही उठ खड़ी हुई और इसके शाने पर सर रख लिया। मुझे तुम्हारी आह लगी है शाहवेज, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया, इसलिए मेरे हिस्से में वो जालिम इंसान आया जिसने अपने वहशीपन से एक बार नहीं कई बार मुझे रुलाया। इसने कई बार मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा पीटा। वो ना से पहले से शादीशुदा था बल्कि अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका है और ये इसकी दूसरी शादी थी, लेकिन इसने ये बात मुझसे छुपाई। एकदम शाहवेज 2 कदम पीछे हुआ। फलक की कुर्बत अब इसे जहर लग रही थी। वो इसके ऐसे करीब क्यों आई जबकि वो जानती थी कि अब शाहवेज अमल का शौहर और एक बच्चे का बाप है। फलक ने इसका पीछा करना बहुत ही शिद्दत से महसूस किया। तभी मुमानी फिरोजा गुलगीर लहजे में कहने लगी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो भरी जवानी में से कितना सदमा दुख उठाने पड़ रहे हैं। वो रो रही थी। शाहवेज इन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, क्या फायदा फिर ऐसे जालिम इंसान के साथ रहने का? मेरा ख्याल है कि फलक को खुला ले लेनी चाहिए। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों मारपीट से तो अच्छा है कि इंसान खामोशी से अलग हो जाए। ये सुनकर फलक भी खुश हो गई। वो फौरन कहने लगी, हाँ मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी इस जालिम इंसान के साथ, मैं इससे खुला ले लूंगी। इसकी बात पर एकदम ही शाहवेज चौंका था। अच्छा, लेकिन तुमने तो खुद पसंद किया था नुमैर को, तो इसके साथ इतने दिन गुजारते हुए तुम्हें इसके किरदार का पता नहीं चला कि वो क्या कैरेक्टर रखता है, किस किस्म का इंसान है? शाहवेज की बात पर वो सर झुकाए खड़ी रही। अगर इनकी वो सिर्फ इन दोनों माँ बेटी को तसल्ली और दिलासा दे सकता था और कुछ इसके इख्तियार में नहीं था। फिर जाने के लिए उठा, मैं भी आऊंगा मुमानी, जब आप मामू से बात कर लीजिएगा। अपने आप को अकेला मत समझिएगा, मैं आपके साथ ही हूँ, हर मौके पर खड़ा हूँ। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो शाहवेज? प्लीज, मैं और मम्मा इस वक्त खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। फलक ने इसे आंखों में आंसू भरकर देखा था। शाहवेज ने नजरें फेर ली। मुझे माफ कर दो फलक, लेकिन घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार करेगी, मैं इसे अकेला छोड़ कर आया हूँ। ये कहकर वो पलटा भी नहीं था और सीधा खुले दरवाजे से चला गया। बीवी माय फुट को गुस्से और हसद की आग में सुलाई थी। इसकी बीवी को तो मैं इसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। शाहवेज सिर्फ मेरा है मम्मा, मैं इसे दोबारा हासिल करके रहूंगी। मैं समझ गई हूँ कि मैं इसे कितनी मोहब्बत करती थी। अब मुझे इसके बगैर 1 मिनट भी सुकून नहीं। मैं नुमैर से तलाक लेकर दोबारा शाहवेज से शादी करूंगी। इसकी इस बात पर फिरोजा बेगम दिल थाम कर रह गई थी। अमल, कुछ पता चला तुम्हें? फलक ने अपने शौहर से खुला ले लिए। जकिया बेगम की बात पर अमल ने सर झुकाया। जी अम्मी, मुझे शाहवेज ने बताया था। देख लो और मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, पुरानी मोहब्बत को सर उठाने में वक्त नहीं लगता।
इसलिए इसे उठने से पहले कुचल देना। जकिया बेगम की बात पर वो हैरान रह गई। क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं? अब मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि फलक अब अकेली है और वो हर रोज फोन करके शावेज को अपने पास बुलाती है, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए। कहीं वो इस हद तक ना चली जाए कि वो शावेज पर हावी हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छी खुशगवार जिंदगी खराब हो, इसलिए अपने शौहर को अपने काबू में रखना और फलक की शावेज की तरफ बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोक देना। जकिया बेगम की बात पर वो सुन सी बैठी थी। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? ये तो शावेज को चाहिए ना। पहले फलक ने इसे धोखा दिया था, तो अब फिर से वो इसकी तरफ क्यों माइल होंगे? ये बात इन्हें समझनी चाहिए। मैं इन्हें रोक सकती नहीं हूँ। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ शावेज तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और अपने बच्चे की खातिर तो दुनिया के किसी भी इंसान से लड़ लेगा जो उसका घर तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन औरत के आंसू बहुत झूठे और मकार भी होते हैं। जिसमें इसके जज्बात बहते हैं, कभी इसके बहते आंसुओं से मुतासिर होकर शावेज ने इसकी तरफ कोई पेशकदमी कर दी तो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अमल की आंखों में नमी आ गई और शावेज के दिल में इसके लिए शक पैदा हो गया। फिर वो खुद ही नोट करने लगा, जब भी शाहजेन को सुलाकर वो इसके साथ बिस्तर पर होती। अभी तो वो सोचते भी नहीं थे करीब आने के बारे में, लेकिन अचानक इसका मोबाइल बजना शुरू हो जाता। किसी की रोती हुई आवाज इसके कानों में आती। वो यकीनन फलक की आवाज थी। यार मैं जा रहा हूँ, मोमानी की कॉल आई है। मामू तो लंदन गए हुए हैं, अब मुझे फलक को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अमल का दिल एकदम ही सुलग गया। वो खामोश खड़ी रही। शावेज उसकी तरफ देखे बिना बाहर चला गया। ठीक कह रही थी अम्मी के मेरे इख्तियार से निकलते जा रहे हैं। शायद फलक की पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई है इनके दिल में। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। लेकिन नहीं, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर शावेज ने इसके एक आंसू इसकी बातों में आकर फलक को अपना लिया तो इसके पास क्या बचेगा? मुझे अभी जाना होगा इससे बात करने के लिए। वो एक फैसला कर उठी थी। मेरी बच्ची को गम खाया जा रहा है अपनी शादीशुदा जिंदगी के टूटने का। अब तुम बताओ शावेज, मैं करूं तो क्या करूं? कहां से इसे वो इसकी पुरानी मोहब्बत ला कर दूं? वो नजरें चुरा रही थी। क्या मतलब मोमानी? में समझा नहीं। शावेज हैरान था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शावेज? मुझे खुद शर्म आती है तुम्हें ये सब कहते हुए। खुद तुम ही चले जाओ इसके पास। वो हैरान था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। इसने देखा फलक अपने कमरे में कंबल में छुपी लेटी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसे देखकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर ताजगी छा गई। वो अक्सर ही मामू की गैर मौजूदगी की वजह से इनका हालचाल पूछने आ जाता था। कभी फलक खुद फोन करके इसे बुला लेती। क्या हुआ फलक, तुमने मोमानी को क्यों परेशान कर रखा है? किस बात की जिद लगा रखी है? तुम्हें मालूम है ना कि माँ बाप अपनी औलाद की वजह से कितने परेशान रहते हैं। इनकी गम खुशी इनके लिए कितनी अहमियत रखती है। शावेज इसे समझा रहा था। ठीक है, मैं जिद करना छोड़ दूंगी अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो। फलक की बात पर वो हैरान हुआ। कैसी बात? क्या कहना चाहती हो तुम? तभी फलक ने इसे अपनी आंखों में जज्ब किया। एकदम ही वो इसके पास उठकर आई और इसके इतने करीब खड़ी हो गई कि शावेज को 2 कदम पीछे होना पड़ा। वो इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। फिर एकदम इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती हो गई शावेज, मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी। वक्ती तौर पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान गई हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो शावेज। इसकी बात सुनकर वो आंखें फाड़े हैरत से इसे देख रहा था कि फलक क्या कह रही है। इसे खामोश देखकर फलक की और हिम्मत बढ़ती गई। फिर वो गुलगीर लहजे में कहने लगी, तुम अमल को तलाक दे दो। वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। वो देहातन गांव से आई हुई लड़की, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो तुम्हारी बीवी बनती। तुम जानते हो ना हम दोनों कितनी मोहब्बत करते थे। हमारे कितने खूबसूरत लम्हात एक साथ गुजरे थे। मैं तुम्हारा बच्चा भी पाल लूंगी। तुम इससे शादी कर लो। इसे छोड़ दो। वो तुम्हारे पांव पड़ती हूँ शावेज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम पीछे हुआ। इन दोनों को खबर नहीं थी कि अमल जो फलक से बात करने चंद लम्हे पहले इस घर में आई थी, वो दरवाजे के पीछे खड़ी धक धक होते दिल के साथ इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इससे लगा आज वो सब कुछ खो देगी। वो सिर्फ शावेज के जवाब का इंतजार कर रही थी। इसके कदम कांप रहे थे। तभी अचानक इसे उसकी आवाज सुनाई दी। ये क्या कह रही हो तुम? होश में हो? आखिर तुम्हें ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बीवी नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है। तुम जानती भी हो फलक ने कि अमल की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। वो मेरे दिल में नहीं, मेरे खून में बसती है। इसने इस वक्त मेरा साथ दिया जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और तुमने मुझे माजूर कहकर ठुकरा दिया। जब मैं पानी पीने के लिए भी दूसरे का मोहताज होता था, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। हर कदम पर मुझे सहारा देती थी। मैं इसके मुखलिस दिल का शुक्रगुजार हूँ। इस रब का जिसने मुझे अमल जैसी बीवी
जो मेरे बच्चे की माँ बनी, मैं तो इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी भर इसका साथ निभाने का वादा किया, फिर चाहे तुम्हारे जैसी सैकड़ों फलक क्यों ना मेरे सामने आ जाएं। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी बात दोबारा मत करना, और अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो हो सकता है कि मैं तुमसे जो मामों की वजह से ये ताल्लुक है ये भी खत्म कर लूं। मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी है और मैं इससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर वो पलट गया। जैसे दरवाजा खोला, अपने सामने खड़ी अमल को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ? इसने देखा कि अमल आंसुओं से रो रही थी, फिर एकदम ही वो शाहवेज से लिपट गई। मुझे डर लग रहा था कि मैं आपकी मोहब्बत खो दूंगी। मैं तो फलक से बात करने आई थी, इसे समझाने के लिए कि वो मेरा घर खराब न करे, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि जिस घर की बुनियादें मजबूत हों, इसे कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही किसी की बुरी नजर इसे बर्बाद कर सकती है। शाहवेज मुस्कुरा दिया, फिर वो कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने अपनी आंखों से देख लिया, मुझ पर अपने यकीन कर लिया, वरना शायद मैं तुम्हारे सामने ये सफाई न दे पाता, क्योंकि किसी औरत के दिल में अगर एक बार शक आ जाए तो इसे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। चलो अब घर चलते हैं, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहकर इसने अमल का हाथ थाम लिया और फलक जहरीली नजरों से इन दोनों को एक साथ जाते हुए देख रही थी। इसके हाथ कुछ ना आया था शाहवेज की मोहब्बत और ना ही इसके दिल की ख्वाहिश। अब हमेशा इसके दिल को खाली रहना था। अब छोड़ दो शाहवेज की बातों को और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। फिरोजा बेगम इसे समझा रही थी, जबकि फलक खामोश थी। मैं बहुत गलती पर थी अम्मी, आपने मुझे इस वक्त क्यों नहीं समझाया। आज मैं अपने दिल को खाली महसूस करती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं शदीद मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत खुदगर्ज थी। जिस वक्त शाहवेज को मेरी जरूरत थी, मैंने इसे अपनी आंखें फेर ली और आज मैं इसकी मोहब्बत को तरस रही हूँ। फलक की आंखें आंसू से भर गईं। फिरोजा बेगम के दिल को तकलीफ हुई। अब सब्र करो मेरी बच्ची, कोई ना कोई शाहवेज जैसे खूबसूरत दिल का मालिक तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हें अपना लेगा, क्योंकि ये आजमाइशें कभी न कभी खत्म हो जाती हैं। फिरोजा बेगम इसे समझा रही थी। इसने थक कर आंखें बंद कर ली। यार, मैं तो तुम्हें बड़ी सीधी सादी मासूम लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक लड़की निकली। देखो, दिल ही दिल में मुझ पर शक कर रही थी और मुझे खबर भी नहीं थी। ये सुनकर अमल जोर से हंसी। ये शक मैंने खुद अपने दिल में पैदा नहीं किया शाहवेज, बल्कि अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं आपकी फलक की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक लूं, वरना नुकसान उठाऊंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अमल का चेहरा गुलाब हो रहा था। शाहवेज ने इसे मोहब्बत से देखा, फिर शरारत से कहने लगा, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हमारे 10-12 बच्चे तो होने चाहिए। इस सबूत के लिए कहो तो अभी पेश कर देता हूँ। ये सुनकर अमल जोर जोर से हंसी थी। क्या कह रहे हैं आप, अभी तो शाहजेन सिर्फ 10 महीने का और अभी से आपको दूसरे बच्चे की पड़ गई। अच्छा तो फिर ठीक है, जब इरादा हो तो मुझे बता देना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। वैसे भी एक खुशगवार फैमिली के लिए कम से कम 8-10 बच्चे होना जरूरी है। ये सुनकर अमल अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो जानती थी कि शाहवेज सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो सोचते ही अमल बहुत घबरा गई। इनकी हंसती हुई आवाजें कमरे से बाहर जा रही थी। जकिया बेगम ने बेख्तियार इन आवाजों को सुना और खुदा का शुक्र अदा किया। बेशक हर आजमाइश के बाद आसानी है, यह आज इन्हें यकीन हो गया था। किस तरह शाहवेज का एक्सीडेंट हुआ तो वो एकदम ही हौसला हार गए। इन्हें इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी और शाहवेज को फलक की, लेकिन ऐन वक्त पर फलक ने शाहवेज से शादी से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इसे लंगड़ा कहकर बुरी तरह धुतकार दिया था, और ये बात इनके दिल पर जा लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद यही बेहतर था। अगर इस वक्त वो शाहवेज की शादी अमल से ना करती तो अमल जैसी खूबसूरत बीवी शाहवेज की जिंदगी में कैसे आती। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। आज फलक का दूसरा निकाह था, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। जो कुछ इसके साथ हुआ था इसके बाद वो बहुत मेचूर हो गई थी। इसने अपना गुरूर कहीं दूर फेंक दिया था। ये रिश्ता शाहवेज ने करवाया था। इसका एक दोस्त था जुहेब, जो एक बच्चे के बाद अपनी बीवी को खो चुका था। इसने जब फलक से बात की तो वो फौरन राजी हो गई। जिस तरह अमल ने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देकर तुम्हारे दिल में बहुत गहरी जगह बनाई है, इस तरह मैं भी अपने होने वाले शौहर के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। इसके बच्चे को माँ वाली मोहब्बत देखकर फलक की बात पर वो मुस्कुरा दिया। लग रहा है कि तुम बहुत समझदार हो गई हो और मैं यही चाहता था। फलक, अब सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं और अमल कदम कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुरा दी पूरे दिल के साथ। अमल इसे देखकर दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इसकी ये नादान कजन अब हमेशा खुश रहे, कभी दुख की कोई लहर इसके करीब भी ना आए।